वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 13 वर्स नंबर 29। अहंकार कृतं बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम् विद्वान् निर्विद्य संसारः चिंतां तुर्ये स्थितस्त्यजेत्। अहंकार कृतं बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम् विद्वान् निर्विद्य संसार चिंतां तुर्येत् स्थितस्त्यजेत्। अहंकार by false ego, kritam produced, bandham bondage, atmanah of the soul, artha of that which is really valuable, viparyayam being the opposite, vidwan one who knows, nirvidya being detached, samsara in material existence, chintam constant thoughts, turye in the fourth element, the Lord, sthitaha being situated, tyajet should give up. The false ego. Hare Krishna. Translation: the false ego of the living entity places him in bondage and awards him exactly the opposite of what he really desires. Therefore, an intelligent person should give up his constant anxiety to enjoy material life and remain situated in the Lord, who is beyond the functions of material consciousness. Srila Sridhara Swami comments as follows: how does material existence cause the bondage of the living entity? And how can such bondage be given up? The Lord explains this here by word ahankara kritam. Because of false ego, one is bound up in the network of illusion. Artha viparyayam indicates that although the living entity desires blissful life, eternity, and knowledge, he adopts procedures that actually cover over his eternal blissful nature and give him exactly the opposite result. The living entity does not want death and suffering, but these are actually the results of material existence, which is therefore useless for all practical purposes. An intelligent person should contemplate the unhappiness of material life and thus become situated in the transcendental Lord. The word samsara chintam can be understood as follows: samsara or material existence
indicates material intelligence, because material existence only occurs because of the living entity's false intellectual identification with the material world. Because of this misidentification, one becomes overwhelmed with samsara chintam, anxiety to enjoy the material world. One should become situated in the Lord and give up such useless anxiety. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Nama Shreshtam Manam Api Sachiputram Atra Sarupam Tasyam स्वरूपम रूपम तस्या गजामुरीपुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवो राधिका माधवाश प्राप्त यश प्रतीत कृपया श्री गुरुं तम नसोऽस्मि वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज के भागवतम कक्षा में। जैसा कि हमने लास्ट संडे डिस्कस किया था वर्स नंबर 27 और कल डिस्कस किया था हम लोग प्रभुजीज ने वर्स नंबर 28, तो उसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं वर्स नंबर 29 जो अभी हमने पढ़ा, और अभी हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट संडे हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंटेलिजेंस अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है इस मटेरियल वर्ल्ड में। 3 स्टेजेस देखे थे उसके, एक्टिव, पैसिव और इनएक्टिव। और गए कुछ हफ्तों में हमने स्टार्ट किया है कि पहले तो फॉल्स ईगो, उसके बाद माइंड, सेंस ऑब्जेक्ट, और किस प्रकार से वो दोनों के कॉम्बिनेशन से हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते चले जा रहे हैं। और लास्ट संडे हमने देखा था इंटेलिजेंस पे, जो यूज़ करना चाहिए हमें माइंड को कंट्रोल करने के लिए। वो जब एक्टिव स्टेट में रहेगा तब वो एक्टिवली माइंड को कंट्रोल कर पाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट संडे। और कल हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो इंटेलिजेंस है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद ट्रैप हो चुका है, कवर हो चुका है। उसके कवरिंग के वजह से जो सोल है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस चुका है। अगर हमारा इंटेलिजेंस कवर्ड नहीं होता तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रुक पाते, बट हमारी इच्छा थी इस मटेरियल वर्ल्ड में रह के एंजॉय करने की। तो भगवान ने उस प्रकार से हर एक बॉडी में हर एक प्रकार का कवरिंग दिया इंटेलिजेंस। इसलिए आप देखोगे तो जो एनिमल्स है उन पे इंटेलिजेंस का कवरिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसी तरीके से एंजॉय करते हैं। हम एनिमल के बॉडी में जैसा एनिमल करते हैं वैसा देखते हैं तो हमें उतना आनंद नहीं आता, बट जो एनिमल है वो उस बॉडी में है, उसे वो चीज़ अच्छी लगती है। तो वो बॉडी के हिसाब से अलग अलग स्तर का इंटेलिजेंस दिया है। तो जो मनुष्य है उनके पास हाईएस्ट इंटेलिजेंस है, जो वो यूज़ करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसी कारण मनुष्य के पास ये इंटेलिजेंस होता है जिससे वो चूज़ कर सके कि अभी उसे क्या करना है, वापस 84 लाख स्पीशीज़ में भ्रमण करना है या समझना है कि यहाँ पे सुख नहीं है। हमारा एक्चुअल स्वरूप है भगवान की सेवा करना। तो ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था भागवतम के कल, और उसका ट्रांसलेशन मैं एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि जो माताएं हैं हमारी उन्हें थोड़ा ओवरव्यू मिले। तो कल जो हमने डिस्कस किया था वो वर्स नंबर 28 था। उसमें बताया गया द स्पिरिट सोल इज ट्रैप्ड इन द मटेरियल बॉन्डेज ऑफ मटेरियल इंटेलिजेंस विच अवॉर्ड्स हिम constant engagement in the illusionary modes of nature.
but I am the fourth stage of consciousness, beyond wakefulness, dreaming, and deep sleep. Becoming situated in me, the soul should give up the bondage of material consciousness. At that time, the living entity will automatically renounce the material sense objects and material mind. तो यहाँ पे कृष्णा क्या कर रहे हैं, हर एक वर्ष में पिछले वर्ष का रेफरेंस देते हुए कनेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे 28th वर्ष में भी वो 3 स्टेजेस का बात किया, और जो 28th वर्ष में जो इंटेलिजेंस के ऊपर के कवरिंग का बात किया, उसी को 29th वर्ष में और डिटेल में बताया कि उससे क्या होगा। तो यहाँ पे पहले कृष्णा बता रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, वापस से इतने श्लोक के बाद एक्चुअल में जो क्वेश्चन था, जो पूछा गया था ब्रह्मा से सेजेस द्वारा, तो उसका जवाब दे रहे हैं यहाँ पे कृष्णा कंटिन्यूएशन में कल के वर्ष में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अहंकार कृतम। सो फर्स्ट इज फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, कि हम अपने आप को गलत तरीके से देखते, गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्यों रखते हैं? डिज़ायर्स वैसे, हमारे डिज़ायर्स के चलते हम अपने आप को कुछ अलग समझना चाहते हैं, भगवान के दास जैसा स्वीकार नहीं करना चाहते, हमें खुद इंजॉयर बनने का इच्छा। तो ये जो है ये हमारा एक्चुअल नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो इसे हम कहते हैं फॉल्स ईगो, और यही फॉल्स ईगो अलग 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 हमारे कार्य में मैनिफेस्टेड। तो ये जो फॉल्स ईगो है ऑफ द लिविंग एंटिटी प्लेसेस हिम इन बॉन्डेज एंड रिवॉर्ड्स हिम एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही एक्चुअली डिजायर्स। तो ये लाइन का 2 मतलब है। पहला मतलब कि जो वो चाहता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस मटेरियल एक्टिविटीज़ में जिसमें भी वो लगा हुआ है, उससे जो वो इच्छा रखता है, जो वो कामना रखता है, वो कभी उसकी पूरी नहीं होती, उल्टा होता है हमेशा। अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखता है, वो कमा लेगा, बट वो पैसे उससे छीन लिए जाएंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट्स बनाने का प्रयास करता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करता है, एक दूसरे पे इमोशनली कनेक्ट होके अटैच होने का कामना रखता है, अपने पार्टनर से, अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा अटैच है, तो लास्ट में उसके साथ क्या होगा, वो सारा कुछ छीन लिया जाएगा। तो जो भी वो चाहता है उसके ऑपोजिट काम होता है। तो यहाँ पे वो अल्टीमेट कॉज के बारे में बात किया है कि किस प्रकार से चीज़ें होती है और किस प्रकार से हमारे साथ बार 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 ऐसे चीज़ें हो रही है जिससे हमें दुख मिले इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो पहला तो ये हो गया कि जो भी वो कामना रखता है वो पूरा नहीं होता, उसका हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है। हम लोग इतने सारे वेपन्स बना रहे हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे वेपन बना रहे हैं, उससे क्या हो, वॉर्स तो कंटिन्यू ही हो रहे, बढ़ रहे हैं, पीस नहीं मिल रहा। लोगों की इच्छा है कि मेडिकल बने, हॉस्पिटल बने तो बीमार ना पड़े, बट बीमार और पड़ रहा है। तो उल्टा हो रहा है हमेशा। जो भी हम मटेरियल वर्ल्ड में जो भी कामना रख के कार्य करेंगे, उसका हमेशा उल्टा ही हमें मिलेगा। तो ये यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं। दूसरा एक चीज़ है जो यहाँ पे परपट में टच किया है, अवॉर्ड हिम एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही एक्चुअली डिजायर्स। तो उसका जो एक्चुअल डिजायर है, रिमूविंग द कवरिंग ऑफ व्हाट एवर ही इज डिजायरिंग फ्रॉम आउटवर्ड्स। हमारा बाहर से ऐसा इच्छा है कि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, मुझे थोड़ा अच्छा खाना चाहिए, मुझे थोड़ा अच्छी खूबसूरत वाइफ चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, ये सारा दिखने के लिए उसकी इच्छा है, बट एक्चुअल में उसका इच्छा है इटरनली इंजॉय करना, उसका एक्चुअल इच्छा है अमर रहना, उसका एक्चुअल इच्छा है कि वो पूरी तरीके से ज्ञान में रहे। तो ये उसका एक्चुअल स्वरूप है। इसको ढकने के लिए अलग 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 प्रकार से हम लोग एक्टिविटी करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, और अपेक्षा रखते हैं कि उससे हमारा जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो, बट बार 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 हमें निराशा ही होती है इस मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि जिस चीज़ में हम खुशी ढूंढ रहे हैं वो हमारे स्वरूप के ऑपोजिट है। ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड हमारे स्वरूप के ऑपोजिट है। हमारा स्वरूप है इटर्नल, हमारा स्वरूप है खुश रहना, नित्य खुश रहना और पूरे ज्ञान में रहना। बट इस मटेरियल वर्ल्ड में हम कभी पूरी तरीके से खुश नहीं हो पाएंगे,
चाहे हम कुछ भी कर लें। तो इसीलिए यहाँ पे बताया है कि जो भी वो कामना रखता है वो कभी पूरा नहीं होता और उसके विपरीत कार्य होता है हमेशा। तो जो पहला है अहंकार कृतम, सो फॉल्स ईगो से ये सारी चीजें स्टार्ट होती है। जैसे हम समझ जाएंगे कि हमारा एक्चुअल नेचर क्या है और उस हिसाब से हम कार्य करने लगेंगे और ये जो अहंकार है हमारा उसे हम त्याग करेंगे, तो हमारा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगा। जब हम वो त्याग करेंगे तो हम आते भक्ति में, बट ये भी कंटिन्यू करते हैं, तो उससे नहीं होगा। तो नेक्स्ट बताया है बंधम आत्मनो। उससे क्या होता है, वो फॉल्स ईगो से, वो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से हमारा बंधन बढ़ते जाता है मटेरियल वर्ल्ड में, और वो बंधन बांध के रखता है इस सोल को इस शरीर में और अलग अलग एक्टिविटी में एंगेज कर। तो एक तरीके से हम जो भी कार्य कर रहे हैं अभी हमें समझ रहा है कि वो तो मेरे काम नहीं आने वाला, एट द टाइम ऑफ डेथ मुझे सब कुछ छोड़ना है, फिर भी हम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बंधम आत्मन, क्योंकि हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के वजह से हम बंदी बन चुके हैं। एक तरीके से सोल बंदी बन चुका है, ट्रैप हो चुका है वो कांस्टेंट डिजायर ऑफ हैप्पीनेस के पीछे। तो वो एक्टिविटी करते चले जा रहा है, गलत, खुद को गलत आइडेंटिफाई करें। उससे क्या होता है, करने की कोशिश कर रहा है, कर भी रहा है, दिन रात हाथ पैर मार रहा है, बट उससे क्या होता है, अर्थ विपर्ययम। उसका जो अर्थ है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग में बताया है, अर्थ मतलब ऑफ दैट विच इज रियली वैल्यूएबल। तो अर्थ मतलब जो सच में हमारे लिए वैल्यूएबल है वो है, बट मटेरियल वर्ल्ड में हम ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं जो एक्चुअल में हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं, तो हम कार्य भी गलत कर रहे हैं। तो अपेक्षा क्या सही रखे उससे। तो जो पहला हमने एक मतलब देखा था कि जो भी वो करने की इच्छा रखता है बट वो उससे मिलता ही नहीं है, और उसकी इच्छा भी गलत है। तो दोनों है यहाँ पर, पहले तो इच्छा भी गलत है और करने भी जाता है उल्टा काम, तो होता कुछ उल्टा ही है। हम सबने देखा है कि हम चाहते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है, फिर हम बोलते कुछ और है। तो यहाँ पे उसी के आगे बताया है कि विद्वान निर्विद्य। तो जो इंटेलिजेंट आदमी है वो क्या करता है, विद्वान आदमी है वो किस प्रकार से कार्य करता है। विद्वान का यहाँ पे मतलब बताया वन हु नोस, निर्विद्य का मतलब बताया बीइंग डिटैच। तो जिसको ये समझ आती है, समझ आना चालू होती है, तो पहला काम वो क्या करता है, ये अहंकार छोड़ने के लिए पहला काम वो क्या करता है, चीज़ों से डिटैच होना स्टार्ट करता है। भले आर्टिफिशियली हमें अभी लग रहा है ये मेरा घर है, ये मेरा पढ़ाई है, ये मेरा लिखाई है, ये मेरा खेलना है, ये मेरा कूदना है, ये मेरे फ्रेंड्स है, ये मेरे मटेरियल दोस्त है, ये मेरे मटेरियल रिलेटिव्स है, ये मेरा मटेरियल ड्यूटी है, ये मुझे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें पहले धीरे 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 कम करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम वो कम करते जाएंगे, वो जो अहंकार है, वो जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, वो भी कम होगा। तो जो विद्वान आदमी है, जो सच में प्रयास करता है, वो उसका रिजल्ट दिखता है निर्विद्य से। उसके आगे बताया है संसार चिंतन। तो संसार का जो चिंता है वो भी धीरे 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 उसके लाइफ से कम होने लगता है जब वो समझ के साथ कार्य करता है। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, मेरे बच्चे हैं, मेरे वाइफ है, मुझे कमाना पड़ेगा, बहुत कमाना पड़ेगा, जितना लगता है उतना देना पड़ेगा, जितना मेरे माता पिता मुझसे चाहते हैं मुझे प्रोवाइड करते जाना है, जितना मेरे बीवी बाल बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना मुझे देना है, जितना मेरा माइंड मुझसे बोल रहा है कि मुझे ज़रूरत है वो सारा चीज़ मुझे करना है। ये सब कार्य में हम लगे हुए। तो ये कार्य हमेशा बढ़ते चले जाते हैं, ये कभी कम नहीं होते। बच्चे से लेकर बड़े तक आप देखोगे तो उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का इच्छा हमेशा बढ़ता चला गया। इवन जब वो ओल्ड हो जाता है वो चाहता है करना, वो इच्छा रखता है, बट उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। बट इच्छा सब में है, छोटे से बड़े सब में। इवन बच्चे हैं उनका मैनिफेस्ट नहीं हुआ बट है डीप डाउन वो डिजायर्स। तो जब हम धीरे धीरे चीज़ें से डिटैच होना चाहते हैं, वो इच्छा लाते हैं, और भागवतम की कृपा से, भागवतम का श्रवण करके हमें चीज़ें समझती है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है, इससे हमें सच में खुशी नहीं मिल रही।
तो हम उसे छोड़ने का प्रयास करते हैं, उससे थोड़ा डिटैच होने का प्रयास करते हैं। तो डिटैचमेंट के चलते हमें अपना जो अहंकार है वो भी धीरे धीरे कम होता है, हमारा जो समझ है वो बढ़ता है। और उससे क्या होता है, यहाँ पे बताया है आगे कि संसार का जो चिंता है वो भी कम होता है। तो कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से डिवोटी के लक्षण होने चाहिए। अगर वो सच में डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर रहा है, अगर वो माइंड पे कंट्रोल कर रहा है, इंटेलिजेंस पे कंट्रोल कर रहा है, अगर उसको देखना है कि वो सच में कर पा रहा है कि नहीं, तो उसे ये देखना चाहिए कि उसका कितना डिटैचमेंट है मटेरियल इंजॉयमेंट्स, कितना डिटैचमेंट है अपने परिवार, अपने सागे संबंधी, अपने जॉब से, अपने पढ़ाई से, अपने बॉडी से, अपने सेंस इंजॉयमेंट्स। तो ये सारे मेजरिंग पॉइंट्स। तो आप ध्यान दे सकते हो कि आपका कितना डिटैचमेंट हुआ, कितना हम सच में बिना कुछ जो हमें अपेक्षा है वो जब नहीं मिलता तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे मटेरियल वर्ल्ड में, हमारे बोलने, हमारे सुनने, हमारे क्रिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब हमें देखना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आगे बताया है कि ये करने से क्या होता है, तो जो संसार का जो चिंता है वो निकल जाता है। तो पहले तो हम समझते हैं कि हम इस बॉडी के चलते फंसे हुए हैं, हमारा माइंड इंटेलिजेंस फंसा हुआ है, इसके चलते हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, बहुत सारी चीज़ें खराब लग रही है। ये बॉडी के वजह से हो रहा है, इस शरीर के वजह से हो रहा है, मैं इस शरीर में हूँ इसलिए हो रहा है, और ये शरीर मेरा जल्दी छूटने वाला है, कभी भी आ सकता है डेथ। कल हमने डिस्कस किया था कि वो तो वेट कर रहा है, लास्ट डिस्कशन में नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन डिस्कस किया था, और फ्राइडे को डिस्कस किया था कि किस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर के भजन में हमने देखा था कि किस प्रकार से डेथ जो है वो वेट कर रहा है, बस दिन से रात, रात से दिन होते जा रहा है, और हम रुके हुए हैं डेथ का। डेथ भी रुका हुआ है कि कब वो टाइम आए और वो हमको लेके चले जाए। तो इस प्रकार से जब हम ये सारी चीजें समझते हैं तो अपने आप जो हम चिंता, बेमतलब का चिंता लेते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, ऐसी चीजों का चिंता लेते हैं जो हमारे शायद काम ही नहीं है, हमारे वो कभी हमें ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ का, उस चीज़ का भी हम टेंशन ले लेते हैं, उस चीज़ का भी बहुत चिंता लेते हैं। और ऐसी चीज़ जो हमें कभी नहीं मिलने वाली, और मिल भी गई तो हमारा कुछ अच्छा नहीं होने वाला, उस चीज़ का जो चिंता है होता है वो धीरे धीरे निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, भक्ति में आने के बाद उनका जो टेंशन है वो कम होने लगता है, अगर वो सही से भक्ति करे तो। जो चिंता में नहीं है तो उनका तो मटेरियल चिंता की बात हो रही है, स्पिरिचुअल चिंता तो लेना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल भी चिंता छोड़ दिया, कुछ टेंशन ही लेने का जरूरत नहीं है, सेवा दिया होगा अपने आप, वैसा नहीं, केयरलेस नहीं बनना, बट जो अननेसेसरी चिंता होती है वो निकल जाती है। यहाँ पे बताया संसार चिंतन, वो निकलता है। तो जो भौतिक संसार से हमें अपेक्षाएं होती है वो कम होते चले जाती है, हमें समझ आने लग जाता है कि यहाँ से हमें जो डिजायर है वो नहीं मिलने वाला। तो अपने आप उसका रिजल्ट है कि हमारा जो संसार से एक्सपेक्टेशन है वो कम होने लगता है, उल्टा होता है। ऐसा होता है कि अपेक्षा रहती भी नहीं, उल्टा हमें उनके प्रति ग्रेटफुलनेस और कंपैशन बढ़ जाता है, लोगों के प्रति, हमारे आसपास। तो ये होना चाहिए। फिर उससे क्या होता है, तो ये यहाँ पे बताया कि इन द फोर्थ एलिमेंट जब हम सिचुएट होते हैं, तो ये सिचुएशन जो फोर्थ स्टेज के बारे में लास्ट वर्ष में बताया है कि 3 प्रकार से इंटेलिजेंस 3 स्टेजेस में जाता है, बट उसके आगे फोर्थ स्टेज भी है जहाँ पे हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस स्टार्ट होता है। जो हमारा, हम कहते हैं ना कि मटेरियल इंटेलिजेंस अलग है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अलग है। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तब स्टार्ट होता है जब हमारा ये फोर्थ एलिमेंट को जानने का और उस पर चिंतन करने का जर्नी हमारा स्टार्ट होता है। तो ये फोर्थ स्टेज यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं कि जब वो मुझे समझता है और मुझ पे ध्यान करता है, मेरे बारे में सुनता है, तब जाके उसके ये सारी चीज़ें जो वो करने का प्रयास कर रहा है वो फुलफिल होता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, बट वो तभी फुलफिल होंगे, वो प्रयास, वो डिटैचमेंट तभी आएगा, वो फॉल्स ईगो तभी हटेगा जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, और वो तब जाके प्रॉपरली वो हमारे अंदर से निकलेगा। Therefore, an intelligent person should give up his constant anxiety to enjoy material life and remain situated in Lord.
हु इज बियॉन्ड द फंक्शंस ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस। और यहाँ पे लास्ट में बताया है हु इज बियॉन्ड द फंक्शंस ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस। तो ये लाइन मैं पहले सोचता था ये लाइन ऐसा क्यों ऐड कर देते लास्ट में। ये आप वर्स पढ़ोगे और इसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखोगे तो ये जो लास्ट का लाइन है वो उसमें नहीं है। तो ये लास्ट का लाइन क्यों डाल दिया ट्रांसलेशन में, ये लास्ट का लाइन क्यों डाल दिया। यहाँ पे बताया हु इज बियॉन्ड द फंक्शंस ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस। वो एक्स्ट्रा लाइन हमेशा हमें लगता है जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक्चुअल में जो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है वो है, बट जो संस्कृत का नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि संस्कृत एक वर्स से नहीं समझा जा सकता, एक 4 लाइन से नहीं समझेगा, उसका स्टार्ट टू एंड पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टिंग होती है। संस्कृत में एक पोइट्री टाइप है, हर एक चीज़ का एक कनेक्शन। तो पिछले वर्सेस के कनेक्शन से ये यहाँ पे वापस हमें याद दिलाने के लिए है कि क्यों भगवान की सेवा से ही हम बच सकते हैं। क्योंकि जो भगवान है और जो भगवान की सेवा है और जो भगवान के बारे में चिंतन है वो इस मटेरियल प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता, वो इस भौतिक संसार से ट्रांसेंडेंटल है। ये भौतिक संसार में जो हम कार्यक्रम करते हैं, कार्य में फंसे हुए हैं, उससे वो अलग है। तो ये चीज़ का हमें रियलाइजेशन रहना चाहिए कि जो भी हम भगवान की सेवा में जो भी एक्टिविटी करते हैं वो मटेरियल एक्टिविटी से अलग है। इस वजह से हम इस मटेरियल प्लेटफॉर्म से उठ पाते हैं, क्योंकि हम एक्टिविटी भी ट्रांसेंडेंटल कर रहे हैं। सो वही एक सोर्स है, वही एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम इस मटेरियल लाइफ से, इस मटेरियल अटैचमेंट से, इस मटेरियल एंजॉयमेंट से और एंजॉय करने का जो डिज़ायर है उससे बच पाएंगे जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे। वन शुड बिकम सिचुएटेड इन द लॉर्ड एंड गिव अप सच यूजलेस एंजाइटी। यूजलेस बताया क्योंकि वो हमारे एक्चुअल हित के लिए नहीं है। तो चिंता उसी चीज़ का करना चाहिए जो हमारे काम है, जो हमारे काम की ही नहीं है, हमें कभी काम आने ही नहीं वाली, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता करके कुछ मतलब नहीं है। जो हमारे जैसे एक्शंस होंगे उसके जैसे रिएक्शंस होंगे, और जो हमारा कॉन्शियसनेस होगा, जो डिज़ायर होगा, उस हिसाब से चीज़ें हमारे लाइफ में आते जाएगी मटेरियल। उससे बहुत ज़्यादा चिंतित होने का ज़रूरत नहीं। तो आप कुछ प्रयास कर रहे हो, उसमें असफल हो रहे हो, वापस प्रयास करो। वापस असफल हो रहे हो तो थोड़ा सोचो कि सच में ये काम मेरे लिए है या नहीं है। जब आप सोचोगे सच में तो समझेगा ये तो मेरे लिए नहीं है, तो मैं 10 बार दूँ 20 बार दूँ, इसमें तो फेल ही होने वाला। उसी प्रकार से कोई सोचता है कि मुझे करोड़पति बनना, उसी के पीछे पागल होते जा रहा है बट बन नहीं पा रहा। उसको सोचना चाहिए कि सच में करोड़पति बन के क्या मिलेगा, सच में बहुत पैसा, बहुत इंजॉयमेंट करके भी क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है लोगों को, देखना चाहिए हमको। जो भी डिज़ायर हम करते हैं, जिनके पास वो चीज़ ऑलरेडी है वो क्या कर रहे हैं वो हमें देखना है। तो आप सच में खुद के हित के लिए सोच रहे हो। जो भी चीज़ का हम कामना रखते हैं वो किसी ना किसी के पास तो है मटेरियल वर्ल्ड में। तो जिनके भी पास वो चीज़ है वो क्या चीज़ कर रहे हैं और क्या अपेक्षा रखते हैं, वो देखना चाहिए। जैसे मैं एक बार सुन रहा था कि जिसके पास पैसा होता है वो बोलता है कि पैसे का ज़रूरत नहीं, पहले पैसे कमा लो फिर बोलना पैसे का ज़रूरत नहीं, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो जब तक आप लोग पैसे नहीं कमाओगे तब तक पैसे का ज़रूरत है, पैसे कमाने के बाद आपको समझेगा कि पैसे का ज़रूरत नहीं। तो वो जो बोल रहा है वो नासमझी है बहुत बड़ी, वो डेढ़ शाना बनने की कोशिश कर रहा है जो भी बोल रहा है कि पहले पैसे कमा लो फिर बोलना कि पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे माता पिता भी ये टॉन्ट मारते हैं कि पैसे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, या मुझे ये सब से कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा देख लूँगा। ऐसा हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी नहीं समझ रहा, तुझे कल समझेगा, बाद में समझेगा, परसों समझेगा, कल कमाएगा तो समझेगा। ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट्स वो पास करते हैं। बट वो खुद क्या कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक माता पिता क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो पैसा इकट्ठा किया है, जो नॉलेज लिया है, उसके चलते थोड़ा खुश होने का प्रयास करते हैं। हमारे आजू बाजू वाले लोगों से ऐसे अपेक्षा रखते हैं जो कभी पूरी नहीं होगी, और वो चाहते हैं कि हम भी वो करें। तो एक तरीके से तो ना समझी है, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं
तो लोगों को ऐसा लग सकता है कि अरे ये क्या लोग है, कोई मटेरियलिस्टिक आदमी सोचेगा ये क्या लोग है भाई, भगवान के नाम का जप करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं और बोलते हैं माता पिता अज्ञानी है, माता पिता जो बोल रहे हो मत सुनो, माता पिता अगर आपको रोक रहे भक्ति करने से तो वो छोड़ो। छोड़ो मतलब माता पिता को छोड़ो मत, उनका बकवास छोड़ो और जो आपके हित के लिए है उस पर कार्य करो, उसके हिसाब से लाइफ को चेंज करो कि आपका वो परिस्थिति ना आए। थोड़ा अगर आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो तो थोड़ा एडजस्टमेंट करो, भगवान से प्रार्थना करो। लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्या उल्टा सुल्टा बात कर रहा है ये। तो वो लोगों का जो समझ है, वो लोगों का जो इंटेलिजेंस है, वो अलाव ही नहीं करता उन्हें इस चीज़ को समझने के लिए। वो जो कामना कर रहे हैं वो कभी पूर्ण नहीं होगा, वो जो डिज़ायर रख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा, चाहे उनका बच्चा उनके पूरी तरीके से उनके हिसाब से काम भी क्यों ना करे। और जो बच्चा चाहता है कि माता मेरे हिसाब से काम करे, वो उनके हिसाब से काम भी कर ले, तो भी वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी एक्चुअल जो सेंटर होता था फैमिली लाइफ का भी वही नहीं है, वो है श्रीमद् भागवतम, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कभी भी भौतिक संसार में ना पिता सुख रहेगा, ना बच्चे सुखी रहेंगे, ना माता सुखी रहेगी, ना दूसरे अन्य जो गृहस्थी में है उन्हें पता है कि कितना भी उनके हिसाब से काम करो उनको कम ही पड़ता है, कितना भी आप उन्हें ला के दो वो उनके लिए हमेशा कम होगा और वो दूसरे चीज का अपेक्षा रखेंगे आपसे। एक आदमी अपने लाइफ में बहुत परिश्रम करके कुछ तो इकट्ठा करके ऑफर करता है, किसे ऑफर कर रहा है? अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिताओं को। और वो माता पिता बच्चे बीवी सोच रहे हैं हाँ इसका तो कर्तव्य है, वो उसको लेते हैं, उससे छीनते हैं और उसे इंजॉय करते हैं। और वो आदमी देखता रहता है और उसको देखने से खुशी होती है। और जब वो आदमी वापस वही माता पिता, वही बच्चे और वही वाइफ से कुछ डिमांड करता है, कुछ डिज़ायर करता है, तो वही उसके बीवी, बाल बच्चे, माता पिता और बाकी अन्य रिलेटिव्स उसके मुंह पे उसके थूक देते कि हम नहीं करेंगे। जैसे हमने देखा था कोई कितना भी पाप करके कमाए और अपने सगे संबंधियों को प्लीज करे, बट जब उसका पाप का घड़ा भरेगा, जब उसको यमराज आएंगे लेने के लिए, तब कोई बचाने नहीं आएगा। इवन मटेरियलिस्टिकली भी हम देखते हैं कि अगर हस्बैंड कुछ पाप करके, वो पैसा खुद के लिए थोड़ी यूज़ करेगा, वो तो अपने जो शुभ चिंतक है, जो उसे लगता है उनके पीछे वो पैसा उड़ाता है। बट सारा दुख दर्द किसे झेलना पड़ता है? वो आदमी को ही झेलना पड़ता है। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मिसिंग होने के वजह से हमारा जो फैमिली लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा मिजरेबल है, हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा गलत है। और वो गलत अपेक्षा के चलते, वो गलत समझ से, और खुद को हम गलत पोजीशन में रख रहे कि मैं करता हूँ, उसके चलते हमें अलग 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 संसार चिंताओं में फंसे रहते हैं, चिंता में फंसे रहते हैं। और वो फंसना भी साधारण फंसना नहीं है, उसमें बंधित हो जाता है। वो हमने इस वर्ष में समझने की कोशिश की। और जो बात मैंने बोला था कि ऐसा लोग बोलते हैं कि तुम ये भी सिखाते हो और साथ ही साथ बोलते हो भगवान का नाम लो, ये तो आप ऑपोजिट नहीं है, सेम है। लोग ऑपोजिट कर रहे हैं, वो दोनों सेम है। तो वो कौन समझ पाएगा? वो विद्वान समझ पाएगा कि किस प्रकार से जो चीज़ हमारे डिवोशनल सर्विस के लिए अनुकूल है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, और जो प्रतिकूल है उसे हम रिजेक्ट करते हैं, फिर वो भले कुछ भी हो। तो एक्चुअल में हमारा जो धर्म है और जो हमारा कर्म है वो हमारे डिवोशनल सर्विस के इनलाइन होना चाहिए, हमारे डिवोशनल सर्विस को हेल्पिंग के लिए होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो हमारा धर्म और वो हमारा कर्म हमारे नाश का कारण बनेगा। तो डिवोशनल सर्विस में जब हम कार्य करते हैं और जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो हम भगवान के सेवा के लिए करते हैं, और हम कैसे भगवान की सेवा ज़्यादा अच्छे से कर सके उसके लिए हम करते हैं, तो वही हमारा धर्म हो जाता है। एक्चुअल में हम धर्म के ऑपोजिट काम नहीं कर रहे, बाकी सब धर्म के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो हमें भी उनके ऑपोजिट काम करना पड़ता है। तो हम एक्चुअली धर्म के हिसाब से काम करते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ क्वेश्चन?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Once in material desires को कम करने के लिए कौन सी spiritual activities को हम और ज़्यादा कर सकते हैं जिससे material desires बहुत कम हो या ना भी हो? तो इसके पिछले वर्सेस में बताया था कि मटेरियल माइंड और मटेरियल डिजायर्स को अगर हमें कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, बताइए। माता जी का क्वेश्चन है कि कैसे हम अपने सेंसेस को कंट्रोल में ला पाए और वो इच्छा हम में आई नहीं, तो कैसे कर सकते हरे कृष्ण। हैं? हरे कृष्ण। हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन रोकना है और सेंस ऑब्जेक्ट्स जो भी है हमें हमारी लाइफ से हटाना है। करेक्ट। तो ये और बताइए थोड़ा, क्या इसका मतलब क्या है जो आपने बोला उसका। वो एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, वो याद है आपको? उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पे एक वर्स है जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, 26 वर्स। उसमें बताया पर्सन हु हैज थस अचीव्ड मी बाय अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी रियलाइजेस दैट मटेरियल माइंड इज लॉज्ड within the sense objects because of constant sense gratification, and that the material objects are existing prominently within the material world, material mind. Having understood my transcendental nature, he gives up both the material mind and its object. तो इस पे एक मैंने एग्जांपल लिया था कि एक आदमी है, वो कह रहा है, उसे डिजायर है कि उसे दारू छोड़ना है। तो उसने आज निर्णय लिया कि उसे दारू छोड़ना है, बट वो डेली पब में जाता है। डेली वो पब में जाता है, हैबिट है उसका डेली पब में जाना, डेली जाके पब में दारू पीना। अभी एक दिन उसने सोचा कि मुझे दारू छोड़ना है, बट पब में डेली जा रहा है, तो क्या होगा? वो बोलता है मैं पब में जाऊंगा और उधर मैं आरती करूंगा, भगवान का स्मरण करूंगा, नाम लूंगा पब में जाके, और पब में जाके मैं एसोसिएशन लूंगा, सब भक्त है, सबका एसोसिएशन लूंगा, कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई भी एक्टिविटी छोड़ना नहीं है हमें, सब करना है। मैं दिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल बनूंगा कि कैसे बहुत ही खुशी भी पा सकते हैं और कैसे भक्ति भी कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल बनूंगा उसका। मैं भौतिक संसार में खुश भी होना चाहता हूँ, मैं पब भी जाना चाहता हूँ, और मैं भक्ति भी करना चाहता हूँ। तो ये जो पब जाना है, ये हमारा एसोसिएशन है विद सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ना है हमें, मतलब दारू छोड़ना, तो सेंस ऑब्जेक्ट्स भी छोड़ने पड़ेंगे, उससे एक दूरी बनानी पड़ेगी। तो बोलेगा मुझे टी कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, मुझे छोड़ना है, और डेली टी कॉफ़ी बना रहा है, डेली टी कॉफ़ी के बारे में सोच रहा है, उसी को देख रहा है, तो वो वापस चालू कर देगा। उसी प्रकार से जो दारू दारू छोड़ के पब में जा रहा है, तो उधर जाके वापस दारू पीना चालू कर देगा। तो जो हम चीज़ें कर रहे हैं जिससे वो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है, उससे भी हमें बचना पड़ेगा, तब हम सच में वो सेंस ग्रेटिफिकेशन से बच पाएंगे। तो पहला तो माइंड का डिज़ायर है, उसे हम कैसे तो कंट्रोल कर लेते हैं, बट हमारे आजू बाजू की चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हमारे आजू बाजू सेम चीज़ चल रही है कंटिन्यूसली, बाहर जाओ कहीं पे भी आग घुमाओ, सब जगह हमारे लस्ट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े उसके ऊपर ही चीज़ें हो रही। हर एक चीज़ अगर कोई देखेगा ध्यान से तो उससे समझेगा कि हर एक चीज़ हमारे काम को बढ़ा रही है, हमारे लोभ को बढ़ा रही है। तो ऐसे जगह जाके तो वो तो होने ही वाला है उसके साथ, वो तो कामना उसमें आएगी। तो इस चीज़ से कैसे बचेंगे? पहला तो हमें पहला स्टेप जैसा है कि डिज़ायर आना चाहिए छोड़ने, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हम निर्णय लेते हैं कि मैं आज से दारू नहीं पीऊँगा, यहाँ पे रुकना नहीं है, इसके आगे भी काम है। तो दारू नहीं पीऊँगा तो क्या करूँ? खाली बैठूँगा? तब आता है बात सेवा का, संघ का और साधना का। तो जो भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है अलग अलग अननेसेसरी चीज़ों में, उधर से निकल के हमें भगवान के सेवा संग साधना में डालना है। और जो हमारा पब जाना आना है वो धीरे धीरे हमें कम करना है, उस पर काम करना है एक्टिवली। अब पब जाते रहूँगा, हो तो रहा है, थोड़ा श्रवण कर रहा हूँ, थोड़ा कीर्तन कर रहा हूँ, थोड़ा एसोसिएशन कर रहा हूँ, बट पब भी जा रहा हूँ और मैं सोच ही नहीं रहा कि कैसे मैं पब जाने से रोकूँ खुद को, कैसे मैं वो बंद करूँ। वो जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है और जो मटेरियल प्लेटफॉर्म है जिससे मैं एसोसिएट करके सेंस ग्रेटिफिकेशन करता हूँ,
या करने की इच्छा और बढ़ती है, उससे भी हमें दूर होना पड़ेगा। और साथ ही साथ दूर होने से जो भी हमारे पास टाइम एनर्जी बचता है उसे हमें लगाना पड़ेगा भगवान के सेवा में। तब जाके हमारा एक्चुअल में हम उस चीज़ को छोड़ पाएंगे। कोई भी एक चीज़ हम नहीं करेंगे तो जो भी हम कर रहे हैं उसका ऑपोजिट हमें मिलेगा। और किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ क्वेश्चन? तो हम देखते हैं बहुत लोग आते हैं भक्ति में, थोड़ा टाइम करते हैं चले जाते हैं। थोड़ा टाइम भी करना बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट उन्होंने कुछ तो किया, बाहर के लोग को वो भी नहीं करे, बट वहीं पे रुकना नहीं है हमें। ऐसा कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं होता भक्ति में कि ये मेरा गोल है, ये पहुंचना है यहाँ तक, ऐसा कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है। भक्ति एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ऐसा सोचना कि अब मैं बस हो गया मेरा, बहुत पढ़ लिया, बहुत चैंटिंग कर लिया, बहुत श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया, बहुत संग ले लिया, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। हमेशा वो ज़्यादा करना है, ज़्यादा करने की इच्छा बढ़नी चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 दिन ही करूँगा, ये रिस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हो तो फिर आप 2 दिन में जो सेंस ग्रेटिफिकेशन करते थे वही छोड़ पाओ, बाकी 5 दिन आप वही काम कर रहे हो। वही कर रहे हैं सब लोग, पूरा हफ्ता भरपूर पेट भर के सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के बाद हम संडे को मुंह उठा के यहाँ पे आते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमें भक्ति मिलेगी। और हम शाम को भी मुंह उठा के चले जाते हैं संडे प्रोग्राम में, और वहाँ पे कुछ तो सुनते हैं जो हम भूलना चाहते हैं वापस, क्योंकि भूलेंगे नहीं तो फिर मंडे से काम कैसे करोगे आप, जो भी मटेरियल एक्टिविटी में लगे हो। तो वो हमारा नेचर है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा धीरे धीरे। समझना पड़ेगा कि भक्ति सिर्फ सैटरडे इवनिंग से संडे इवनिंग तक का चीज़ नहीं है, वो 24/7 कंटिन्यूसली होने वाली चीज़ है, वो करना है। तो उतने हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ने पड़ेंगे, तब हमें वो टाइम मिलेगा जिसमें हम भक्ति कर पाएंगे। और अगर हम भक्ति कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं तो उसी में अगर उसको कंटिन्यू करने का इच्छा हमें स्ट्रांग है तो हमें वैसे चीज़ों से भी बचना है जो चीज़ हमें और ज़्यादा भौतिक संसार में, भौतिक परिस्थिति में ले जाती है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के करीब ले जाती है। इसीलिए हम मना करते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा फैमिली फंक्शन, बहुत ज़्यादा शादी, बहुत ज़्यादा पार्टी, बहुत ज़्यादा आउटिंग्स वगैरह नहीं करना। एक और चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्टेटस डालते लोग, आज स्टेटस का ज़माना है, इसका बर्थडे, शुभ दीपावली, शुभ अभिनंदन, बहुत अभिनंदन, ये अभिनंदन, वो अभिनंदन ही चल रहा उनका पूरा दिन। देखते हैं भक्त जो खुद को डिवोटी क्लेम करते हैं, दे आर एक्चुअली सो फूलिश that they are claiming they are devotees, but they are associating and engaging themselves in those activities which are lowest, एकदम गिरे हुए चीज से भी गिरी हुई चीज है, उसमें वो पड़े हुए। किस चीज का अभिनंदन? एक और साल वो मृत्यु के करीब जा रहा है। दुख होना चाहिए, रोने चाहिए। अगर तुमको सच में अभिनंदन करने का इच्छा हो रहा है तो रोना भी आना चाहिए। कुछ अभिनंदन करने का इच्छा नहीं होता, दिखावा होता, वो छुटता नहीं है। वो दिखावे का जो मेंटालिटी हमारा, वो छुटता नहीं है जल्दी। बहुत दिखाना है कि मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे वहाँ पे ये हो रहा है, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें से भी हमारा सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन, सटल भी नहीं हो तो सीधा सीधा दिख रहा है कि कितना इंजॉयमेंट ले रहा है वो दूसरों को दिखाने में, और खुद को डिवोटी समझ रहा है। तो ये सारे लक्षण हमें खुद में देखने। ऐसा नहीं अरे वो प्रभु जी बहुत स्टेटस डालते, देखो प्रभु जी का क्लास ले लिया, आज प्रभु जी के बारे में बोला है, या माता जी का आज माता जी का नंबर आया, या हमारे सबके लिए हम स्टेटस पे नहीं दिखा रहे, बट हमारे वर्ड्स में दिखता है कि हमें कितना अटेंशन चाहिए, हमें कितना रिकग्निशन चाहिए, हमें कितना वाह चाहिए। हमारा जो वाह नहीं करेगा हमारा, वो हमारा दुश्मन है, जो हमारे खिलाफ हो जाएगा, आज से तू मेरा ऑपोजिट। भक्ति में भी देखते हैं, ये पार्टी, वो पार्टी, ये इसके ग्रुप का, इसका इसके साथ जमेगा। तो वो सारा अलग अलग इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा फॉल्स ईगो है, हमारा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। तो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है तो हम रिनंसिएशन कर ही नहीं पाएंगे, रिनाउंस हो ही नहीं पाएंगे। तो खुद में जो कमी है वो देखना चाहिए हमें, हम सच में किससे चिंतित है,
दिखा सकते हो आप बाहर से कि आप बहुत अच्छे डिवोटी हो, बट वो हमारे एक्टिविटीज और हमारे, जब आप मुंह खोलोगे तब आपका एक्चुअल समझता है, आपके कार्यक्रम से और आपके बोलने से समझता है कि आप किस तरह पे, और उसी के आगे किस तरीके से आप चल रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, हर एक चीज से समझता है कि कौन किस तरह का है। तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। भले हम 10 साल से भी क्यों ना कर रहे हो, हम 10 साल से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खुद का भी और भक्तों का भी, वो हमारा मूड होना चाहिए। हमें लगता है अरे 10 साल से सेवा किया है हमने, खाने का काम है, ऐसा घमंड आता है। अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले लोग बहुत मान दें हमें और बहुत आगे पीछे घूमे हमारे, कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को। ज़रूरी है कहीं कहीं पे जहाँ पे हमारा सेवा है सच में, बट खुद को एग्जामिन करना चाहिए कि कितना हम सेवा के हिसाब से करते हैं और कितना हम खुद को एंजॉय करने के लिए करते हैं, खुद उससे एंजॉयमेंट पाने के लिए करते हैं। और किसी का कुछ क्वेश्चन? हरे कृष्णा, हम पूरे जो वीकली अपने मतलब भक्तों के संग में नहीं रहते, नॉर्मल लोगों के मटेरियलिस्ट लोगों के संग में रहते हैं, तो भी हम मटेरियल डिजायर ना करें, उससे बचे तो कैसे हो सकता है? वही कि आपको सेवा संग साधना में लगना पड़ेगा, और हमारा अगर सच में हमें वो करना है तो वो डिज़ायर एक्टिविटी में परिवर्तित होना चाहिए। जो हमारा इच्छा है वो एक्टिविटी में दिखना चाहिए हमारे, हम कितना साधना कर रहे हैं, हम कितना सच में बुक रीडिंग कर रहे हैं, हम कितना अच्छे से सच में साधना कर रहे हैं। तो वही मैंने बोला कि रीडिंग, लिसनिंग, चैंटिंग, ये ऐसा कोई इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है कि ये मैंने कर लिया, ये हो गया, मेरा आज का कंप्लीट हो गया। आप और करो, और टाइम है और करो, और टाइम मिल रहा है और करो। सेवा की बात आती है तो सेवा, पहले हमें सेवा करने लायक बनना पड़ेगा धीरे धीरे, तब जाके हमें कुछ सेवा मिलेगी भगवान की कृपा से। किसी को स्टार्टिंग से ही कुछ मिल जाता है, वो भगवान की कृपा है। किसी को कुछ सालों तक कुछ नहीं मिलता, बट उसका वो खुद की सेवा कर सकता है एक्चुअल में, वो भगवान के बारे में सुन के, भगवान के बारे में जप करके और श्रवण करके, फिर धीरे 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 जब वो दिखेगा कि वो सच में सीरियस है, तो भगवान अपने आप सेवा का अरेंजमेंट कर देते। तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता कोई और चीज़ में। हमारा सिंसियरिटी हमारा एफर्ट है, हमारा सिंसियरिटी इन प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इज आवर एक्चुअल क्वालिफिकेशन। वही क्वालिफिकेशन है जिससे हमें सेवा मिलता है और हम सेवा कर पाते। तो जो भी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, वो भी आप कर सकते हो, और कुकिंग कर सकते हो कृष्णा के सेवा में। कुकिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ कई स्पेसिफिक जगह पे करना है, आप घर पे भी कर सकते हो, अच्छे से भगवान को भोग लगा सकते हो बना के, और जो भी चीज़ें घर में आ रही है, बन रही है, उसे कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को भोग लगा के ही पाओ, उस प्रकार से आप और सेवा में जुड़ सकते हो। अच्छे क्वालिटीज़ डेवलप करना खुद में, वो भी एक सेवा है। अगर हम में अच्छे क्वालिटीज़ है तो हम सच में दूसरों को अच्छे से सर्व कर पाएँ। तो जो चीज़ सर्विंग में भी हेल्प करती है वो भी हमारा सर्विस ही, हमारा कर्तव्य है एक प्रकार से वो, कि हम अच्छे से सेवा करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करें। तो क्या करते हैं, नहीं आता मुझे, नहीं वो तो मुझे नहीं है, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। तो वो भी डिस्कस किया था हमने कि अगर कुछ सेवा मिलती है, करने की इच्छा आती है, तो उसका बल भी हमें मिलता है अगर हम सच में उसको एक्शन में लाएंगे। एक्टिविटी में लाना, हमारे डिजायर्स को तब फुलफिल होंगे जब उस पर हम काम करेंगे। हम सोच के छोड़ते और फिर वही काम करते जो हमें लगता है जिससे खुशी मिलेगी, बट वो नहीं मिलती। तो फिर थोड़े टाइम बाद हम फिर सोचते, फिर छोड़ते हैं, और फिर हम प्रयास करते हैं, बट फिर छोड़ते हैं, और फिर गिरते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हम सच में जो टाइम बच रहा है उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, और ऐसे कार्यों में फिर भी लगे हुए हैं जिससे वो काम वापस करने की इच्छा हमें। और किसी का कुछ क्वेश्चन? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।